میں انجیل صحیفہ آپ تمام معزز مہمانوں کو آج کی شام نظم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی یہ شام اردو نظم کے نام ہے، جسے لیڈنگ ایج ایونٹس اور جناب طارق فیضی نے آپ کے لیے سجایا ہے۔ اردو نظم کی وسعت، اس کے روشن امکانات اور اس کی ادبی حیثیت کے اعتراف کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے، جسے نیرنگ خیال کا نام دیا گیا ہے۔ اس محفل میں موجود تخلیق کار اور سامعین تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی یہ شام آنے والے کئی سالوں تک یاد رکھی جائے گی۔ جلدی نہ کیجیے، دیکھ لیجیے ذرا۔ بہرحال بہت بہت مبارک بعد میں دینا چاہوں گا طارق صاحب کو۔ یہ کام 148 سال کے بعد ہو رہا ہے۔ ایک اردو انجمن لاہور میں اردو پنجاب انجمن لاہور میں بنی تھی، محمد حسین آزاد صاحب اور حال ہی اس میں اس کے سربراہ تھے، اور انہوں نے ایک مشاعرہ جسے کیا کہتے ہیں مناظمہ وہ کرایا تھا، جس میں صرف نظمیں تھیں۔ وہ ایک دو بار اور ہوا لیکن پھر بات وہیں رہ گئی۔ اس کے بعد جہاں تک مجھے معلوم ہے ذاتی نشستوں میں تو یقیناً صرف نظمیں سنائی گئی ہوں گی، اور یہ بھی سچ ہے کہ مشاعروں میں کچھ شاعر جیسے ساحل صاحب، کیفی صاحب، سردار جعفری یہ بنیادی طور سے نظم کے شاعر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی نظمیں سنائی ہیں۔ لیکن نظم کا جسے مناظمہ کہتے ہیں وہ 148 سال کے بعد محمد حسین آزاد اور حالی کے بعد طارق فیضی صاحب کو تحفے کی۔ یہ حقیقت ہے۔ اب آج کل دنیا میں کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، تو یہ بھی کیسے ہوتا؟ اس لیے کہ اگر سب نہیں تو بہت سے شاعر ایسے تھے کہ میرا فرض بنتا تھا کہ ان سے پہلے پڑھوں، لیکن اب یہ غلطی اور صحیح۔ چلیے ایک بہت مختصر سی نظم سے شروع کرتا ہوں، پھر دھیرے دھیرے پھیلوں گا۔ تو میں بھول جاؤں تمہیں اب یہی مناسب ہے، مگر بھلانا بھی چاہوں تو کس طرح بھولوں، کہ تم تو پھر بھی حقیقت ہو کوئی خواب نہیں۔ یہاں تو دل کا یہ عالم ہے کیا کہوں کم بخت، بھلا سکا نہ یہ وہ سلسلہ جو تھا ہی نہیں، وہ ایک خیال جو آواز تک گیا ہی نہیں، وہ ایک بات جو میں کہہ نہیں سکا تم سے، وہ ایک ربط جو ہم میں کبھی رہا ہی نہیں، مجھے ہے یاد وہ سب جو کبھی ہوا ہی نہیں۔ یہاں بیٹھے سامعین اس شعور کے ساتھ آئے ہیں کہ وہ نظم کی گنجلک گرہیں کھولنے کا فن جانتے ہیں۔ ایک خیرہ خیرہ روشنی میری چھاؤں میں ہوتی ہے، یہ دنیا جس کا نام ہے میرے پاؤں میں ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، آپ بھرپور تالیوں میں اردو نظم کی آبرو جناب ڈاکٹر وحید احمد کا استقبال کیجیے۔ نہایت قابل احترام جناب جاوید اختر صاحب، محترم پروفیسر خورشید رضوی صاحب، معزز خواتین و حضرات، رات تو بھیگ رہی ہے، وقت کافی گزر چکا ہے، لیکن مجھے اجازت دیجیے کہ چند کلمات میں اس سارے پروگرام کے روح رواں جناب طارق فیضی کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ گوئٹے سے بھی یہ بات منسلک ہے اور نیٹشے سے بھی اس کا تعلق ہے۔ تو ایک مشہور فریز ہے کہ لیو ڈینجرسلی، لیو ڈینجرسلی۔ یہ خطروں کے کھلاڑی بہت کم دنیا میں پائے جاتے ہیں، ورنہ مشاعرے برپا کرنا اور ادبی فنکشنز کروانا ساری دنیا میں یہ تو ایک دھندا بن چکا ہے۔ تو اس شور و غل میں ایک ایسا مشاعرہ برپا کروانا، اور وہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ، نظم کا مشاعرہ خالی، اور وہ بھی
दुबई में ये किसी आम आदमी का काम नहीं है। ये काम अगर कोई कर सकते थे तो वो तारिक फैजी ही कर सकते थे। देखिए, दुबई को जब हम मुआजना करते हैं इसका बाकी ममालिक पे में जहाँ के बर सगीर का डायस्पोरा है बहुत ज़्यादा, जैसे यूके है या अमेरिका है, सऊदी अरब है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये ज़मीन जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं ये इस एतबार से बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद और अलहदा है और सबसे बुलंद है, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पे ख़ास तौर पे भारत, इंडिया से और पाकिस्तान से लोग बड़ी आसानी से यहाँ पे आते हैं। वो लोग जो उर्दू समझते हैं, जो अदब के परस्तार हैं, उनका एक जम गफ़ीर यहाँ पे जमा होता है और बहुत से मशाहिर यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, जिस तरह के हमारे साहिब सदारत यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। इस नहायत अहम जगह को एक दबिस्तान का दर्जा दे देना एक ही शख्स का कमाल है और उनका नाम तारिक फैजी है। मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ और ये मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि जब ये तकारीब जो है सहरोज़ा ग्लोबल फेस्टिवल की, जहाँ के आने का हम लोगों को एजाज़ मुझे हासिल है, ये अभी तकारीब शुरू नहीं हुई थी तो सारी दुनिया में इसकी गूंज थी और मुझे इसकी खुशी है कि तारिक फैजी एक बहुत बड़ी रिवायत के अमीन हैं। वो एक रिवायत कायम कर रहे हैं। नज़्म का मैं नज़्म का शायर हूँ, एक तालिब इल्म हूँ नज़्म का। मैं समझता हूँ कि हम जब पाकिस्तान में मुशायरे में जाते हैं तो नज़्म पढ़ते हुए शायरों को घबराहट होती है। उसकी वजह है कि हमारे यहाँ जो रिवायत है वो गज़ल की है। चुनाचे मुख्तसर मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि यहाँ पे आना एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है मेरे लिए और इज़्ज़त अफ़ज़ाई है। जिस फ़याज़ाना तरीके से इंतज़ामिया ने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी कि मैं इतनी बहुत सारी देर जनाब जावेद अख्तर साहब के पहलू में बैठूं, उस हवा में सांस लूं जिसमें इन्होंने सांस लिया, जिनको हम अरसा दराज से कई दहाइयों से सुनते आ रहे हैं, जिनकी शायरी और जिनके नग़मात हमारे कानों में रस घोलते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात है कि मैं उनके साथ बैठा। नज़्म का उन्वान है कोलाज। ये 3-3 मिसरों के बंद हैं। जनाब सदर की इजाज़त से। उसने मुट्ठी के गुलदां में टहनी रखी, उसने मुट्ठी के गुलदां में टहनी रखी, पत्तियों के किनारे चमकने लगे, फूल भरने लगे और छलकने लगे। और उसने पांव धरे घास के फर्श पर, उसने पांव धरे घास के फर्श पर, पांव का दूधियापन सिवा हो गया, सब्ज़ा पहले से ज्यादा हरा हो गया। और जब स्लेट आसमां की तपकने लगी, उसने बारिश लिखी पोर के चाक से, दस्ते नमनाक से, लम्से बेबाक से। और उसने रहले दहन पर सुखन जो रखा, उसने रहले दहन पर सुखन जो रखा, हर समात के पर्दे को जुज़दां किया, शामिले जां किया, जुज़्वे ईमां किया। और उसको छूकर हवा जो मुसाफिर हुई, बांस बन सारा मुरली मनोहर हुआ, सीप गोपी हुई, रक्स जौहर हुआ। और गीले साहिल ने जब उसके पांव चखे, गीले साहिल ने जब उसके पांव चखे, उसके नमकी लबों में फतूर आ गया, बहर को जायके का शऊर आ गया। बहुत शुक्रिया। नज़्मों जैसी गहरी और ख़ूबसूरत शायरा अम्बरीन सलाहुद्दीन का भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। तारिक साहब, आपको भी और लीडिंग एज को बहुत मुबारकबाद। नज़्म का उन्वान है एम्बुलेंस के अंदर से।
सदियों जैसे पल कानों में सरसर करता है वक्त का माया जल। सदियों जैसे पल कानों में सरसर करता है वक्त का माया जल। गूंजे हर आवाज एक चिंगाड़ तवाफ करे और खोले सारे राज। पीछे रह गया घर बैठी हूं मैं सांसें रोके गोद में तेरा सर। पीछे रह गया घर बैठी हूं मैं सांसें रोके गोद में तेरा सर। रस्ते फैलते जाएं पहिए चीखें गरम सड़क पर सिग्नल खुलते जाएं। नज़्म का उन्वान है ब्रेकिंग न्यूज़। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने जिस्मों में पलते हुए भेड़िए को सिधाएं। बदन भूख को प्यार के नाम पर मीठे लुक़मे खिलाएं। हवस को मोहब्बत के सबसे हंसी पैरहन में छुपाएं। गले से लगाएं तो बरसों से जबरन दबाई हुई अपनी मुँहज़ोर ख्वाहिश से छुटकारा पाएं। जनाब हुसैन शहजाद साहब। नज़्म का उन्वान है शतरंज। उधर गुलझटे में उलझते हैं अखवंदगां, आसमानों पे करनों की तीरा शबी छा गई। कारज़ारे गुमा की निहा कहकशाओं में नीले हरे लाल कंचों की बाजी जमी। अरशमीदस अरस्तु फलातून और देवजानस की महफिल सजी। उधर गुलझटे में उलझते हैं अखवंदगां, आसमानों में करनों की तीरा शबी छा गई। कारज़ारे गुमा की नेहा कहकशाओं में नीले हरे लाल कंचों की बाजी जमी। अरशमीदस अरस्तु फलातून और देवजानस की महफिल सजी। और इधर बहर की 3 तालों में बजता निहावंद है। शायरी कब उसूलों की पाबंद है। शेर महमीज है, शेर बेबाक है, शेर शतरंज है। तारिक फैज़ी की उर्दू अदब से दीवानावार मोहब्बत और अदब की बेलौस खिदमत किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अदबी महफ़िल के बेहतरीन इंतज़ामात और नहायत संजीदगी से की गई फहरिस्त साजी आपका इम्तियाज़ है। गुज़िश्ता 2 अशरों पर मुहित आपकी अदबी खिदमात में मोतबर सीनियर्स, गोशा नशीन शोरा और गैर मामूली सलाहियतों के मालिक नौजवानों को बैरून मुल्क मुतारिफ़ करवाने का एज़ाज़ भी आपको हासिल है। आपकी सुखन शनासी और बेहंगम शोर से पाक मुशायरे आपकी खसूसियत है। सच्ची और खरी नज़में लिखने वाले हमारे शायर जनाब शोएब कयानी का इस्तकबाल कीजिए। आदाब। सबसे पहले तो तारिक फैज़ी भाई के लिए एक दफ़ा क्लैपिंग हो जाए, जो हमें दूर दराज से ढूंढ के आपके रूबरू पेश करते हैं। नज़्म पे हया। हम ही तो हैं वो जो तय करेंगे कि इनके जिस्मों पे किसका हक है। हम ही तो हैं वो जो तय करेंगे कि किससे इनके निकाह होंगे। ये किसके बिस्तर की जीनतें हैं। वो कौन होगा जो अपने होंठों को इनके जिस्मों की आब देगा। भले मोहब्बत किसी के कहने पे आज तक हो सकी ना होगी, मगर ये हम तय करेंगे इनको किसे बसाना है अपने दिल में। हम इनके मालिक हैं, जब भी चाहें इन्हें लिहाफों में खींच लाएं और इनकी रूहों में दांत गाड़ें। उर्दू नज़्म की ताज़ा आवाज़ मोहतरमा फ़ातिमा मेहरू। इस खूबसूरत तरीन लम्हे पर खुदाए बुज़ुर्गो बरतर के बाद मोहतरम तारिक फैज़ी साहब की शुक्रगुज़ार हूँ कि जिनकी मोहब्बत शफ़क़त अदबी काविशों की वजह से हम ऐसे नौवारिदान जो हैं वो भी इन लेजेंड्स के दरमियान मौजूद हैं। उन्वान है हमसफ़र। हमसफ़र तू कहाँ था, हमसफ़र तू कहाँ था। नंगे पैरों से भागी हुई एक लड़की जो छत पे गई थी
ڈور کٹنے کو تھی ایک سرا تیری باہوں میں الجھا ہوا تھا، تو سراپا ہوا تھا۔ ایک کٹی ڈور کے زخم اڑتی پتنگوں کے اوپر پڑے تھے، وہ تو اب بھی وہی ہیں، فقط تو نہیں ہے۔